What's up guys, welcome back to the channel Shore of Anatomy and today we are going to continue with that segment of our abdomen. पिछले वीडियो में हमने आर्टेरियल सप्लाई की बात की, what are the different arteries which supply the different segments and different viscera of our abdomen. आज हम बात करने जा रहे हैं anterior abdominal wall के बारे में. As the name suggests that it forms a wall of our abdomen, anterior wall of our abdomen. So named as anterior abdominal wall. What are the different structures present within the anterior abdominal wall? How it protects our anterior abdominal walls? How it protects our abdominal region, and also the clinicals related to the anterior abdominal wall. We are going to look for all these topics. तो आज का ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेते हैं. What are today's objective? For very first, we are going to look the skin of anterior abdominal wall. Similarly, the arterial and its nervous supply. Also about the superficial fascia of the anterior abdominal wall and about the deep fascia of the anterior abdominal wall. Continuing with the topic of anterior abdominal wall, first we have to look how is anterior abdominal wall is formed. Anterior abdominal wall आखिर बनता कैसे है? So anterior abdominal wall is formed by anterior abdominal wall is formed by majorly अगर बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं हम लोग तो सबसे पहले आता है स्किन. सबसे पहला एक स्किन का लेयर मिलेगा हम लोगों को. देन वी आर गोइंग टू फाइंड अ सुपरफिशियल फेशिया. सुपरफिशियल फेशिया. आफ्टर इट कम्स द डीप फेशिया. देन कम्स द मसल्स. द मसल्स विच कवर्स आवर anterior abdominal, which forms the anterior abdominal wall. These muscles are actually responsible for the protection of our abdominal region. आप देखेंगे कि हमारे abdominal region में बोन्स या फिर कोई भी हार्ड स्ट्रक्चर्स ऐसे प्रेजेंट नहीं है जो हमारे abdominal region को डायरेक्टली सपोर्ट करें या फिर प्रोटेक्ट करें. यहाँ पे मसल्स ही हैं जो कि हमारे abdominal region को मेजर सपोर्ट और प्रोटेक्ट करते हैं. तो जो anterior abdominal wall के मसल्स हैं इनको भी देखेंगे एंड ऑल्सो अबाउट दी extraperitoneal fascia. Extraperitoneal fascia. And at last comes our parietal peritoneum. Parietal peritoneum. तो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की फॉर्मेशन की अगर बात करें अंदर से बाहर की तरफ तो सबसे बाहर में आपको स्किन मिलेगा. उसके बाद आप और अंदर आएंगे तो सुपरफिशियल फेशिया. देन मोर डीपर इट गेट्स द डीप फेशिया और नीचे मसल्स आएंगे, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फेशिया और पैराइटल पेरिटोनियम. तो आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो इस स्किन के बारे में पढ़ेंगे हम अपन और सुपरफिशियल फेशिया के बारे में पढ़ेंगे और डीप फेशिया के बारे में पढ़ेंगे. Skin throughout the anterior abdominal wall is loosely attached to the underlying structure. मतलब जो हमारे पूरे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की अगर बात की जाए तो स्किन डायरेक्टली किससे अटैच होता है? उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है मतलब कि सुपरफिशियल फेशिया जो है उससे लूजली अटैच्ड होता है केवल एक रीजन को छोड़ के. हाँ बिल्कुल आपने सही सोचा, अम्बाइलिकस को. अम्बाइलिकस इज अ स्ट्रक्चर विच इज अटैच्ड टू अ स्कारी टिश्यू. मतलब जो हम जब एम्ब्रियोनिक लाइफ की बात करें, इंट्रायूट्राइन लाइफ की बात करें तो मदर से नरिशमेंट comes via the placenta through the umbilical cord to the fetus. तो ये umbilical cord जो है वो हमारे अम्बाइलिकस रीजन पे अटैच्ड रहता है. तो ये एक स्कारिड टिश्यू फॉर्म कर देता है, टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. खाली इस रीजन को छोड़ के हमारा जो स्किन है वो पूरा का पूरा लूजली अटैच्ड होता है अंडरलाइन टिश्यू या फिर सुपरफिशियल फेशिया में अगर बात की जाए एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की. ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम स्किन पे नर्वस सप्लाई की. स्किन की nervous supply. So the skin of anterior abdominal wall is supplied by lower 6 thoracic nerves यानी कि T6 to T12 nerves and from the L1 nerve. The lower 6 thoracic nerve and lumbar nerve supplies the skin of anterior abdominal wall. Lower 6 thoracic nerve मतलब कि अगर बोला जाए T6 से लेके T11 को हम लोग thoracic nerves बोल सकते हैं, बोला जाता है, बोल कर सकते हैं thoracic nerves. and T12 is the subcostal nerve and L1 रूट वैल्यू से दो मेजर नर्व्स निकलती हैं जो कि हमारे स्किन को सप्लाई करती हैं. कौन कौन सी हैं वो? तो इलियो हाइपोगैस्ट्रिक
and iliolingual. Iliolingual. So these are the two nerves which arises from the root of L1 spinal nerve and supplies the skin of the anterior abdominal wall. तो anterior abdominal wall की nervous supply हमें समझ में आ गई, T6 to T12 and the L1 spinal nerve supplies the skin of anterior abdominal wall. Coming to its blood supply. Coming to the blood supply. Blood supply में भी सबसे पहले हम लोग देखेंगे arterial supply. What are the arteries which supplies the skin? हमने जो arterial supply बात की थी हमने अपने previous वीडियो में, वो सभी की सभी deep arteries थी, मतलब superficial arteries नहीं थी जो skin को supply करे, cutaneous arteries नहीं थी. Arterial supply की बात की जाए अगर तो there is a artery which is a branch of subclavian artery and from the first part of subclavian artery से निकलेगी and along the lateral border of sternum it runs downward, pierces the diaphragm and branches into two different branch. वो कौन सी आर्टरी है जो सबक्लेवियन से डायरेक्ट निकलेगी? ये हमारा हार्ट है, हार्ट से सबक्लेवियन से जो ब्रांच निकलेगी ये स्टर्नम है, स्टर्नम के लेटरल बॉर्डर पे रन करेगी, इसको बोलते हैं इंटरनल थोरेसिक आर्टरी या फिर इंटरनल मेमोरी आर्टरी. ये हमारे पेक्टोरल रीजन को सप्लाई करती है, लेकिन यहाँ पे हम लोग पेक्टोरल के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं. यही इंटरनल थोरेसिक आर्टरी नीचे जाके दो में डिवाइड होती है. सबसे पहला मस्क्यूलोफ्रेनिक आर्टरी. मस्क्यूलोफ्रेनिक नाम पता चल रहा है, फ्रेनिक यानी कि डायफ्राम को सप्लाई करने वाली है और जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं उनको भी सप्लाई करती है. ठीक है, तो मस्क्यूलोफ्रेनिक आर्टरी और एक डिसेंड करती है, इसको बोलते हैं सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी. सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ये अगर इससे नहीं समझ पा रहा है तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ इंटरनल मेमोरी आर्टरी. दिस सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी is responsible for the supply of upper part of skin of anterior abdominal wall. तो हम लोग ये हमारा anterior abdominal wall है, सपोज इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं तीन पार्ट में, एक अपर पार्ट, एक लेटरल पार्ट anterior abdominal wall का और एक लोअर पार्ट. तो ये जो अपर रीजन है, ये अपर रीजन जो है हमारे स्किन का, वो किसके द्वारा सप्लाई होता है? तो बाय द सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी. Similarly, talking about the lateral part of anterior abdominal wall, so it is by the intercostal arteries and the lumbar arteries. एक और आर्टरी होती है डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी. डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी. तो अब बात की, हम जान गए हैं कि अपर पार्ट ऑफ स्किन को कौन सप्लाई करता है. अपर पार्ट ऑफ स्किन को सप्लाई करेगा सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी which is a branch of internal mammary artery. Similarly, the lateral part is supplied by the intercostal lumbar arteries and deep circumflex iliac arteries. Intercostal और lumbar arteries किसकी ब्रांच है? तो डोर्सल आयोटा की. डोर्सल आयोटा की खूब सारी इंटरकोस्टल ब्रांचेस आती हैं जो कि हमारे इंटरकोस्टल रीजन के पोस्टीरियर को सप्लाई करती हैं, इंटरकोस्टल मसल्स को, और लंबर आर्टरीज जो होती हैं वो एब्डोमिनल रीजन को सप्लाई करती हैं, स्किन ऑफ एब्डोमिनल रीजन. So these are the supply of superior and the lateral part of the anterior abdominal wall skin. Talking about the inferior part of the skin of the anterior abdominal wall, it is supplied by the, ये सभी किसकी ब्रांचेस से सप्लाई होती हैं? तो कॉमन इलियक आर्टरी या फिर फीमोरल आर्टरी की ब्रांचेस से सप्लाई होती हैं. इनके नाम क्या क्या हैं? सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी. याद रखिएगा, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक और सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, दे आर बोथ आर डिफरेंट आर्टरीज. सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक इज अ ब्रांच ऑफ इंटरनल मेमोरी आर्टरी, वेयर सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी इट इज अ ब्रांच ऑफ फीमोरल आर्टरी. एपिगैस्ट्रिक फीमोरल या फिर कई बार कॉमन इलियक से भी निकलता है, सॉरी एक्सटर्नल इलियक से भी निकलता है. सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक artery is a branch of external iliac artery या फिर femoral artery. It is also supplied by the superficial circumflex iliac artery. So what is the arterial supply for the lower part of the skin of anterior abdominal wall? It is the superficial epigastric artery, branch from external iliac artery or from the femoral artery. Also by the superficial circumflex iliac artery, it is also a branch of femoral artery, and by the superficial external pudendal artery. Superficial external
pudendal artery. It is also a branch of femoral artery, pudendal artery. तो ये हमारे मेजर आर्टेरियल सप्लाई हो गए स्किन रीजन के, किसके, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के। हमने स्किन को कितने पार्ट में डिवाइड किया, तो 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक अपर पार्ट, अपर मिडिल पार्ट बोल सकते हैं आप, एक अपर पार्ट, और फिर एक लेटरल पार्ट और एक इंफीरियर पार्ट। तो अपर मिडिल पार्ट जो मेजर आर्टरी उसको सप्लाई कर रही है वो है सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। समटाइम्स इट इज आल्सो सेड दैट इन द मिडिल पोर्शन द सप्लाई इज इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, तो वो भी सही है। तो सुपीरियर एंड इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी supplies the upper part of the skin of anterior abdominal wall. Similarly, the lateral part is supplied by the intercostal lumbar arteries and the deep circumflex iliac arteries, which are the branches of dorsal aorta, the running descending aorta. The inferior portion is supplied by the superficial epigastric artery, superficial circumflex iliac artery, superficial external pudendal artery. They all are the branches of external iliac artery and the femoral artery. Now, टॉकिंग अबाउट दी वीनस सप्लाई। तो वीनस ड्रेनेज वही है जो आर्टरीज के नाम है, वहां पे आपको खाली और खाली वीन्स के नाम रख देने हैं। सो दे आर द वीन्स विच सप्लाइज द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, द स्किन ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो वीनस ड्रेनेज का मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इट इज एज सिमिलर टू द आर्टेरियल सप्लाई, बस आर्टरीज की जगह आपको वीन्स बोल देना है। नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर वीडियो, the anterior abdominal wall, it is the superficial fascia. Superficial fascia of anterior abdominal wall is divided generally into the two major types, the fatty layer and the membranous layer. Fatty layer को कैम्पर्स फेशिया भी बोला जाता है, मेम्ब्रेनस लेयर को स्कारपास फेशिया भी बोला जाता है। एज द नेम सजेस्ट फैटी लेयर, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे खूब सारा एडिपोज टिश्यू होगा जो कि फैट को स्टोर करने में मदद करेगा। मेजरली जो हमारे फैट स्टोरेज एरिया कौन से हैं, तो यही अपना बेली रीजन हो गया, स्टमक रीजन हो गया, ग्लूटियल रीजन हो गया, या फिर थाई के रीजन हो गया। ये सभी ऐसे रीजन है जहाँ पे मास में फैट स्टोर होता है। तो अगर एब्डोमिनल रीजन की बात की जाए तो यही फैटी लेयर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्टोरेज ऑफ फैट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये क्लिनिकल के लिए इस तरीके से इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे अगर फैट ज्यादा जमा हो जाता है तो बॉडी डिसबैलेंस या फिर हार्ट के प्रॉब्लम्स जैसे कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शंस, हार्ट अटैक और कैंसर प्रोड्यूसिंग एजेंट्स भी होते हैं जो फैट जमा होता है एब्डोमिनल रीजन पे। सो the outermost layer is the fatty layer of the superficial fascia and abdominal region, and the inner to it is the membranous layer, also known as the scarpa's fascia. Talking about the continuation of the superficial fascia, so superiorly superficial fascia is continuous with the superficial fascia of the thorax region, and laterally it is continuous with the superficial fascia of the back. Talking about to the inferior region, inferiorly we will find that it reaches up to the region of inguinal ligament, and membranous layer forms a tubular sheath around the root of the penis in case of males, and if in case of females it forms a tubular sheath around the clitoris. Pubic symphysis से अटैच होने की जगह ये tubular sheath फॉर्म कर दिया, या फिर इसको बल्बार फेशिया भी बोला जाता है। अगर मेल्स के केस में देखा जाए तो ये ट्यूबुलर sheath पेनिस को सराउंड कर देगा, और अगर फीमेल्स में बात की जाए तो क्लाइटोरिस को सराउंड कर देगा। Similarly, after surrounding the penis or clitoris, the superficial fascia goes down and then it covers the scrotal region. तो scrotal में जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनको डार्ट्रोसस मसल्स बोला जाता है, जो कि हमारे जो भी स्क्रोटम है उसको सिकुड़ने या फिर फैलने में मदद करते हैं। तो यहाँ पे जो सुपरफिशियल फेशिया प्रेजेंट होती है स्क्रोटल रीजन पे, इसको हम लोग डार्ट्रोसस फेशिया भी बोला जाता है क्योंकि डार्ट्रोसस मसल से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप इमेजिन करते जाइए कि कैसे कैसे सुपरफिशियल फेशिया इंफीरियरली जा रहा है। स्कारपास फेशिया इंफीरियरली आया और फिर ट्यूबुलर शीथ फॉर्म किया या फिर बल्बर फेशिया फॉर्म किया किसके अराउंड, पेनिस के अराउंड, अगर फीमेल्स है तो क्लाइटोरिस के अराउंड। then it extends inferiorly to the scrotum, covers the dartrosus muscle and forms its superficial fascia. Here it is known as the dartrosus fascia. This dartrosus fascia continues backward and forms the colles fascia. ये कॉलेज फेशिया कब नाम दिया जाएगा, तो जब ये डार्ट्रोसस फेशिया जाके किस पे अटैच हो जाएंगे, तो इस्चियल स्पाइन पे जाके अटैच हो जाएंगे या फिर इस्चियल ट्यूबरोसिटी पे जाके अटैच हो जाएंगे। ये इस्चियल लाइन पे जब सुपरफिशियल फेशिया या फिर डार्ट्रोसस फेशिया अटैच होगा तो यहाँ पे इनको कोलिस फेशिया बोला जाता है। सो दिस इज द एक्सटेंट ऑफ सुपरफिशियल फेशिया अबाउट डाउनवर्ड।
हाउ इट इज नेम्ड, इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, कैंपर्स कब बोलेंगे, स्कारपस कब बोलेंगे, डार्टोसस कब बोलेंगे, कोलिस फेशिया कब बोलेंगे, बर्बर फेशिया कब बोलेंगे. सो here we finished with the superficial fascia. Talking about the deep fascia, so deep fascia runs just deeper to the superficial fascia, and it continues with the deep fascia of lower limb inferiorly and deep fascia of upper limb and the thorax region superiorly. Next comes the muscles of our anterior abdominal wall. About the muscles of anterior abdominal wall, we are going to make a separate video, and our abdomen will continue in the next video. Hope you like this video. If you like this video, please hit the like button and also subscribe to my channel if you had not yet subscribed. Share it as much as possible. I need this. I need that more students get benefited from this channel. And comment your views, whatever they are, positive, negative, they are acceptable.